चैप्टर 13 न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। विच पार्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये मस्ट बी प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर प्रोटॉन तो होता ही है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन? इट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ मैटर। तो यहाँ पर एनर्जी निकालने का जो फार्मूला होता है इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ एम जो है 1 ग्राम दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो इसको 10⁻³ लिखेंगे। सी का मतलब है लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸। और यहाँ पर जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 में 3 चला जाएगा तो ये 13। इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आप देख लेना। The source of energy in stars is nuclear fission. Neutrons and protons are bound inside the nucleus by the strong nuclear force. Nuclei having same mass number and different atomic number are called isobar. The nucleus of light is called a hydrogen. लाइट न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। In the process of lighter nuclei combine to form heavier nuclei is known as nuclear fusion. The ratio of the atomic masses of hydrogen, deuterium, and tritium is 1:2:3. The average value of binding energy per nucleon is 8 mega electron volt. Nuclei of an atom mass 30 to 170 are stable. Stable मोर स्टेबल होते हैं जब इनकी जो मास है 30 से 170 के बीच होती है। एटॉमिक मास लेस देन 170 लेस देन 130 आर अनस्टेबल और लेस स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज न्यूक्लियर फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल इन द लेबोरेटरी? बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर एट 10⁻7 Kelvin. Express the energy equivalent of 1 AMU in mega electron volt. The energy released by 1 AMU mass is 931.5 mega electron volt. What is nuclear force? Write its properties. The force that binds neutrons and protons inside the nucleus is known as nuclear force. It is strong, attractive. It has very short range. It occurs equally between neutron, 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 proton, and proton, proton, and does not depend on the charge. What is meant by binding energy of nucleus? Where does it come from? The energy required to separate neutrons and protons from the nucleus is called binding energy. It is equal to EB equal to delta mc square. The binding energy is derived from the mass defect. What are isobar? Those nuclei which have different atomic numbers and same atomic mass number is known as isobar. These are the example. They have same atomic mass 40 40 40 but different atomic number. What is meant by isoprotonic or isotope? Those nuclei which have the same atomic number and different mass number are called isotopes. यहाँ पर एटॉमिक नंबर सबका सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। ये एग्जाम्पल है। एक्सप्लेन आइसो न्यूट्रॉनिक विथ एग्जाम्पल। दोज न्यूक्लियाई इन विच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। तो यहाँ पर 16 में 8 माइनस करेंगे 8 है, 15 में 7 माइनस करेंगे 8 है, 14 में 6 माइनस करेंगे 8 है। माइनस करने पर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, तो इनमें सब में सेम नंबर के न्यूट्रॉन्स हैं। इनको आइसोटोनिक बोलेंगे। What is meant by binding energy per nucleon? Write its significance. The binding energy per unit atomic mass number of an nucleus is called binding energy per nucleon. It tells the stability of the nucleus. EBN equal to EB upon A. Explain mass defect. The difference between the sum of masses of protons and neutrons of nucleus and the mass of the nucleus is called mass loss or mass defect. यहाँ प्रोटॉन का मास है और ये न्यूट्रॉन का मास है, इनका सम करना है, न्यूक्लियस की मास को माइनस करना है, तो यहाँ पर ये मास डिफेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन। प्रॉपर्टी, और यहाँ पर अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके ये लिखा है। आइडेंटिटी, हीलियम न्यूक्लियाई होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं। इसमें चार्ज +2 होता है, इसमें माइनस होता है, इसमें नो चार्ज होता है। पेनिट्रेशन पावर इसकी वेरी स्मॉल होती है, लार्ज होती है, वेरी लार्ज होती है। फ्लोरेसेंस की बात करें, इसमें मोर होता है, लेस होता है, वेरी लेस होता है। ऑनेजिंग पावर है, वेरी हाई है, लेस है, वेरी लेस है।
फोटोग्राफिक इफेक्ट ब्लैकन है, ये ब्लैकन कर देता है, ये भी ब्लैकन कर देता है। स्पीड इसकी लेस है, इसकी मोर है, इसकी इक्वल टू लाइट है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड ये अनडिफ्लेक्टेड होता है। इसका मास जो है मास ऑफ हीलियम की इक्वल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल है, रेस्ट मास इसका जीरो होता है। एनर्जी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.001 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका पाथ जो स्ट्रेट होता है, टॉर्चर्स होता है, ये स्ट्रेट होता है। इनमें से यदि 4 मार्क्स का है तो केवल 4 प्रॉपर्टीज आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेब्लिश द रिलेशन n इक्वल टू n नॉट ई माइनस लेमडा टी। तो ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडर गोइंग द डीके पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल एंड इट इज़ रिटन एज ये माइनस डी एन अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू एन। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर डीके प्रोसेस चल रही है। इसके बाद यहाँ पर लेमडा के प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये लेमडा लिख देंगे, तो इसको हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट। आगे के स्टेप में देख लेते हैं हम अब क्या करेंगे। इसमें से जो है एन का हम इधर ट्रांसपोज कर दिए हैं और डी टी को इधर ट्रांसपोज कर दिए हैं। फिर यहाँ पर जो अगले स्टेप में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट है एन जीरो टू एन डी एन अपॉन एन, ये एन को यहाँ और यहाँ पर लेमडा को बाहर करके 0 से डी तक इस तरह से। तो ये इनिशियल लिमिट है और ये फाइनल लिमिट है, लोअर लिमिट इस और अपर लिमिट हम यहाँ पर यूज करते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एल एन नेचुरल लॉग एन और एन जीरो एन आ जाएगा। यहाँ लेमडा टी और ये डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है टी होता है। इसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पहले पुट कर देते हैं तो एल एन एन हो गया, फिर इसके बाद एल एन एन जीरो हो गया लेमडा, और यहाँ पर अपर लिमिट करेंगे तो टी माइनस और इसके बाद फिर लोअर लिमिट करेंगे तो जीरो। इस तरह से हम वैल्यू पुट कर देंगे। इतनी वैल्यू पुट करने के बाद यदि हमको इसको माइनस में हटाना है तो हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं और ये माइनस लेमडा टी है। यदि हमको एल एन हटाना है तो इसको पावर में लिख देंगे, ई माइनस लेमडा टी। ये फार्मूला लिखा है, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एन को फिर इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा। इसको रेडियो एक्टिव लॉ भी बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन लॉ भी बोलते हैं।